Hello everyone. In this video I am going to discuss and explain one more question type of Duolingo English test, which is record yourself saying the statement below. In this video I have given some information which is very basic, then preparation tips and task tips, three methods. By using that methods you can improve your speaking and reading skills, that also I have well explained in this video. At the end of the video I have provided the audio of all 15 sentences so that you come to know how to pronounce and how to read that all sentences. Okay, so keep watching this video till the end. Whatever notes you have to note down, that you do, and please like, share and subscribe this. Let's start our video. Let's understand this question type. The question type is record yourself saying the statement below. There is no preparation time, no chances is given, and you have to complete this task within 20 seconds. So you have to consider the time very seriously because it is not half minute, it is only 20 seconds. Okay, total words are like 8 to 18 words in one sentence or two, depends on your level as it is adaptive test. In practice test there are 3 sets, while in real test there will be 6 to 7 sets. Okay, now this is the task of reading plus speaking, because you have to read the statement or sentence and you have to record it, so it is speaking also. Now what skills they are checking through this test is they are going to check your word pronunciation, quickness, reading skill, speaking skill, fluency, rhythm, pitch of your voice, understanding of words and sentences, sentence structure, reading with pronunciation marks or not. Okay, these all things are included. So maybe you find this task very easy, and it is very easy, but sometimes it happens that they will ask you certain type of sentence where pronunciation of some words are quite difficult. Okay, so this skill you have to improve with the practice, and it is very easy to do. I will give you the tips afterwards. Now tips for this task: very first is, first read the whole statement carefully and speedily and check out is there any word which is difficult for you to pronounce correctly. सबसे पहले आपको एकदम स्पीड में जो स्टेटमेंट दिखाई दिया है उसको स्पीड में अपने मन में रीड कर लेना है कि कहीं कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो आपके लिए प्रोनाउंस करना डिफ़िकल्ट है या नहीं. आपको बहुत ध्यान रखना है कि 20 सेकेंड है तो 10 सेकेंड्स आप मन में रीड करके एक बार चेक करें, और बाकी के 10 सेकेंड आपको किसी भी हाल में रिकॉर्ड करने के लिए बचा के रखने हैं. ओके, आप ये नहीं कर सकते कि मैं पहले देखती हूँ प्रॉपरली और उसी में ही 20 सेकेंड्स ख़त्म हो जाए. सेकेंड टिप, you need to be so quick that you have to have only 20 seconds to finish this task. So read in your mind within 10 seconds and read aloud to record in 10 seconds. Okay, so total 20 seconds you have to utilize. Third one, pay attention to pronunciation mark and read with rhythm and proper pitch of your voice. Some words needs to be spoken with high pitch while some at low pitch. Basically people are just speaking and reading in a certain flow जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. जब आप किसी चीज़ को रीड करते हो तो उसके साथ रीडिंग के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेसिफिकली इन IELTS एंड Duolingo वेयर टाइम इज़ वेरी लेस. ठीक है,
फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आपने रीड कर लिया और समझ में कुछ भी नहीं आया और फिर उसको दूसरी बार आप रीड करो, तब तक तो आपको जो टाइम दिया है टास्क कंप्लीशन का वो टाइम ख़त्म हो जाए. सो एज सुन एज यू स्टार्ट रीडिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन योर रीडिंग इज़ विद द हाई पिच, लो पिच, रिदम एंड पैटर्न. ओके, जब आप बोल रहे हो तो आपकी रिदम पैटर्न के साथ वो कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव होता है, अदरवाइज वो नहीं होता. ठीक है, क्योंकि आपके फीलिंग्स आपकी वर्ड्स के अंदर आते हैं जब वो हाई और लो होते हैं पिच के साथ, वैसे. नेक्स्ट इज डोंट फॉरगेट टू क्लिक रिकॉर्ड बटन प्रॉपरली. मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स फॉरगेट टू क्लिक इट प्रॉपरली एंड दे स्टार्ट रीडिंग अलाउड एंड इट डजेंट रिकॉर्ड. मेरे बहुत स्टूडेंट्स ऐसा मिस्टेक करते हैं जिनको बेसिकली कंप्यूटर यूज़ करने की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है. तो क्लिक कहाँ मिडल में क्लिक करने से वो प्रॉपरली क्लिक होगा. कई बार ऐसा होता है कि नर्वसनेस में 20 सेकेंड्स ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वो फटाफट रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सोच के रीड करने लगते हैं, पर रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया होता. तो यू हैव टू चेक कि आपने प्रॉपरली रिकॉर्डिंग बटन ऑन किया है या नहीं. नेक्स्ट इज डोंट रश एंड डोंट बी नर्वस. ठीक है, आपको बहुत नर्वस नहीं हो जाना है. सिंपल सा ये टेस्ट है, एंड वंस यू इंजॉय इट आपको मज़ा आने लगेगा. ये रीडिंग होता है जैसे हम स्कूल में कॉलेज में करते हैं उसी टाइप का, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है. इफ़ यू हैव डन प्रॉपर प्रैक्टिस एंड हैव गुड रीडिंग स्किल देन दिस टास्क इज़ वेरी ईजी. Practice test has very easy sentences to read, while in real test complex and compound sentences with words which are difficult to pronounce are there. ओके, ये बहुत बार मेरे स्टूडेंट्स ने बार बार मुझे कहा है कि प्रैक्टिस टेस्ट तो बहुत इजी लगता था, बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे, इसलिए हम लोगों ने टेस्ट जल्दी बुक करवा लिया. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट मोमेंट, बट इन रियल टेस्ट लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दे हैव फेस्ड. तो उस टाइम पे प्रैक्टिस कम पड़ जाती है या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं. एंड वी कैन से कि उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट में लोगों को इजी सेंटेंसेस दिए हैं ताकि स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में टेस्ट बुक कर लेते हैं, जबकि रियल टेस्ट में उससे उल्टा हो रहा है. ठीक है, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ दिस. नेक्स्ट इज डोंट ट्राई टू यूज एक्सेंट इफ यू आर नॉट मास्टर और फेमिलियर विथ करेक्ट वन. इट विल अफेक्ट योर स्कोर इफ नॉट स्पोकन करेक्टली. ये मैंने पहले भी मेरे कई वीडियो में बताया है कि एक्सेंट इज़ नॉट नेसेसरी. एक्सेंट बहुत नेसेसरी नहीं है. इफ़ यू आर नॉट मास्टर, इफ़ यू डोंट नो द रूल्स, देन डोंट ट्राई टू स्पीक विद द एक्सेंट. आप सिंपल इंग्लिश बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलोगे तो आपको अपने स्कोर बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज इफ़ यू हैव accent problem then you must have to work on that. Basically in my area I belong to Gujarat and properly in Surat area बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज वो इंग्लिश बोले या गुजराती भी बोले तो उसका एक्सेंट सूरती होता है. राइट, सेम वे एरिया वाइज एक्सेंट चेंज होते रहते हैं. इफ़ वी हैव सीन दैट मुंबई के लोग जो हिंदी बोलते हैं वो अलग होता है, बिहार के लोग हिंदी बोलते हैं वो अलग होता है. तो उस हिसाब से एक्सेंट वाली हम हिंदी बोलते हैं, उसी टाइप का हम गुजराती बोलते हैं, उसी टाइप का हम इंग्लिश भी बोलते हैं. सो हियर यू हैव टू वर्क ऑन योर एक्सेंट. आपको एक्सेंट रिमूव करना है बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है. ठीक है, यू मस्ट डेवलप द रीडिंग स्किल एंड प्रोनाउंसिएशन. मैंने पहले भी अपने रीडिंग टिप्स जो IELTS का मेरा वीडियो था जिसमें मैंने रीडिंग टिप्स दिए हैं, इन दैट आई हैव मेंशन हाउ टू डू रीडिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स. आपको किस तरह से क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. इफ़ यू डोंट अवेयर अबाउट दैट देन गो टू द प्ले लिस्ट एंड चेक दैट वीडियो. ठीक है, reading skill is very important. If you want to do the practice you can just read aloud in a room and record yourself. That is the easiest way to do the practice. Now here I am going to give the preparation tips for this. Very first is listen more authentic podcast as much as possible to learn pronunciation. ये सबसे easy है कि when you are doing anything at the same time you can keep the English podcast in the background. Basically when I do cooking that time I listen the podcast.
English podcast, and it must be BBC or some authentic podcast will be there, then it is more beneficial. वो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाएगा और किस तरह से कौन से वर्ड के ऊपर हाई पिच, लो पिच और रिदम पैटर्न चेंज करना है, दैट ऑल्सो यू कैन लर्न बाय लिसनिंग. ओके. सेकेंड, यू मस्ट डेवलप द स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल. आपकी स्पीकिंग स्किल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जो भी बोल रहे हो वो सामने वाले को कन्वे नहीं हो रहा है तो वो गैप क्रिएट करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज रीड द सेंटेंस एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लिसन दैट अगेन एंड ट्राई टू फाइंड आउट योर ओन मिस्टेक. If you are not joining any classes and you are doing self study and preparing yourself, तो ये बहुत ज़रूरी है that you record yourself, listen it and try to find out your fault and mistakes and correct it and then record again. ठीक है. तो ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा. अदरवाइज यू रिपीट द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, रॉन्ग सेंटेंस, रॉन्ग वर्डिंग्स, और रिपीटेशन करने से रॉन्ग चीज़ों का आप रॉन्ग चीज़ ही सीखोगे. ठीक है. नेक्स्ट इज लिसन न्यूज़ इन इंग्लिश. इट विल हेल्प अ लॉट. यस, इट इज़ बोरिंग, आई मस्ट से. लिसनिंग न्यूज़ इज़ वेरी बोरिंग, बट उसके थ्रू ही आप बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स सीख सकोगे. ओके. Next is while typing practice or listen and type, that time keep your stopwatch or timer on, because we have to maintain the 20 second. हमको टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको टाइमर ऑन करके ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपका टाइम कितना कम पड़ रहा है या आप टाइम के पहले ख़त्म कर रहे हो वो आपको पता चलेगा. नेक्स्ट इज ट्राई इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड एंड गेट फ्लुएंसी. आपकी रीडिंग स्किल की स्पीड को इंक्रीज करो. बेसिकली आई गिव दिस टाइप ऑफ टास्क टू माई स्टूडेंट्स. उनको एक पेज देती हूँ जिन पे वो लोग टाइमर ऑन करके रीड करते हैं. व्हेन यू आर रीडिंग दैट पेज यू हैव टू कंसिडर द टाइम. अगर पहली बार में आपके अगर 10 मिनट्स लगी है आपको फुल पेज रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो नेक्स्ट टाइम में सेम पेज को रीड करने के लिए आपको एटलीस्ट 7 मिनट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए. इस तरह से आप स्मॉल टास्क करते जाओ, बेबी स्टेप लेते जाओ, तो आपकी रीडिंग स्किल इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज there are 3 ways you can practice and improve your pronunciation, reading and speaking. यहाँ पर मैं आपको अपने 3 प्रॉपर मेथड्स बता रही हूँ जो मैं खुद अपने आप भी फॉलो करती हूँ और मेरे स्टूडेंट को भी फॉलो करने के लिए बोलती हूँ कि आप कैसे अपनी फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन पे कैसे वर्क कर सकते हो, हाउ यू इम्प्रूव दैट स्किल्स. ओके. वेरी फर्स्ट इज यूज गूगल सर्च इंजिन, सेकेंड इज गूगल असिस्टेंट एंड थर्ड इज व्हाट्सअप स्पीच टू टाइप ऑप्शन. यहाँ पर मैं आपको तीनों की तीनों डिस्कस कर रही हूँ. वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू गो फॉर इट, बट डू द प्रैक्टिस विद दिस थिंग्स. इट विल इम्प्रूव एंड यू डोंट नीड एनी ट्यूटर, एनी क्लासेस और एनी टीचर टू डू दिस थिंग्स. दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर सेल्फ स्टडी. ओके. वेरी फर्स्ट इज गूगल सर्च इंजिन. अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे होता है गूगल सर्च इंजिन. वहाँ पर आपको दिखेगा, वहाँ साइड में एक माइक का बटन होता है. क्लिक ऑन दैट एंड स्क्रीन विल बी लाइक दिस. स्पीक नाउ और साइड में आपको माइक दिखेगा. आपको वहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी सर्च करना है दैट यू हैव टू स्पीक. बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा. तो यहाँ पर आप कोई सेंटेंस रीड करोगे तो वो पूरा सेंटेंस टाइप होके वो दिखाएगा कि आप क्या बोल रहे हो. ठीक है. तो इफ़ योर प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट तो वो पूरा सेंटेंस भी करेक्ट आपको दिखाएगा. नेक्स्ट इज गूगल असिस्टेंट. गूगल असिस्टेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से वो पूछेगा हाउ कैन आई हेल्प. ओके. तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि यहाँ पर माइक बीच में मिडल में माइक ब्लू कलर का दिख रहा है. इफ़ यू क्लिक ऑन दैट एंड देन वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, वो गूगल असिस्टेंट उसको टाइप करेगा और फिर उसको सर्च करके आपको उसका रिप्लाई देगा. तो दिस इज़ द सेकेंड मेथड वेयर यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एंड रीडिंग. आप जो रीड करोगे वही आपका टाइप होगा और आपको पता चलेगा कि व्हाट वर्ड आर इनकरेक्ट, which words are incorrect. Okay.
नेक्स्ट इज व्हाट्सअप स्पीच टू टाइप ऑप्शन. यहाँ पर आई हैव शोन यू, ये देखिए कीबोर्ड में नीचे की तरफ जहाँ पर हम स्माइलीज होते हैं उसके बाजू में माइक का छोटा सा कैप्शन होता है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे, थोड़ा हार्ड क्लिक करना पड़ेगा, लॉन्ग. वो क्लिक करने पर टैप टू स्पीक आता है. वहाँ पर मिडल में जो माइक है वहाँ क्लिक करोगे तो आप जो भी बोल रहे हो वो सारा वो टाइप करके वो मैसेज सेंड हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर इजी इसलिए है, if you are having your friend's number or parents number, in that you do the practice like this कि आप उस माइक पे क्लिक करिए और कोई सेंटेंस रीड करिए और वो उसको एज अ मैसेज आप सेंड करो. इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम तो वो टाइप भी रॉन्ग होगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है. ठीक है, दिस इज़ इन द व्हाट्सअप. तो ये 3 मेथड है जहाँ जो आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए. अनदर इज दैट आई सजेस्ट यू टू डाउनलोड द प्रोनाउंसिएशन एप्लीकेशंस. ओके, जहाँ पर आपको यूके और यूएस दोनों के प्रोनाउंसिएशन वो दिखाते हैं. यू हैव टू टाइप द वर्ड एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द माइक एंड यू हैव टू चूज यूके और यूएस. तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन आपको वो बोल के दिखाएंगे हाउ टू प्रोनाउंस देम. Another one is Merriam-Webster. That dictionary is very nice. It will show you the example, sentence, meanings, word origin plus pronunciation. Okay, so I suggest you to download the Merriam-Webster. वो भी बहुत अच्छी है, वो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताती है. नाउ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रैक्टिस टेस्ट. यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिस टेस्ट दी है उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है. I have given 5 sentences for each level, beginner level, intermediate level and advanced level. हर एक के मैंने 5-5 sentences दिए हैं. You have to note down all the sentences in your notebook first. Sorry, यहाँ पर sentence का spelling mistyped है. आपको सारे के सारे sentences अपने नोटबुक में लिख लेने हैं पहले, ताकि बाद में आप उसको रिकॉर्ड कर सके प्रॉपरली. ठीक है, क्योंकि एक ही मोबाइल में दोनों चीज़ हो नहीं सकेगी एक साथ. सेकेंड, देन यू नीड टू यूज एनी ऑफ द 3 मेथड आई हैव गिवन एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ रीडिंग दिस सेंटेंसेस. इफ you mispronounce, then it will type the wrong word and you come to know your mistake. Next is take only 20 seconds to finish one sentence. Basically I have given here 15 sentences, so per sentence you have to take 20 seconds to record yourself. Okay, next, at the end of the video I have given audio of the correct pronunciation so that you will listen them and can learn the correct pronunciation. Basically when you do recording of yourself, that time you have to try by yourself first, but then you feel that this word I don't know how to pronounce it and how to pronounce the rhythm and pattern of the sentence and what is the pitch of the sentence. That time if you are having any doubt, then at the end of the video I have given the whole प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल द 15 सेंटेंसेस, और हर एक सेंटेंस को मैंने 2 बार प्रोनाउंसिएशन रखा हुआ है, सो इट विल गिव यू मोर प्रैक्टिस. ओके, if you listen this audio then too you will get good practice. One more tip is that हमारा पहला जो वीडियो हुआ था जिसके अंदर हमको लिसन एंड टाइप वाला जो क्वेश्चन था, इन दैट ऑल्सो वॉट एवर द सेंटेंसेज यू लिसनिंग, दैट सेंटेंसेज विल टीच यू द प्रोनाउंसिएशन. ठीक है, जो लिसन करोगे उसको आपको टाइप करने वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी आपको बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे कि जो आपको प्रोनाउंसिएशन पे प्रैक्टिस के लिए काम आएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी रियल टेस्ट कैसा होता है. एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ स्क्रीन विल अपीयर एंड यू कैन सी एट द डाउनवर्ड्स रिकॉर्ड. वहाँ पर क्लिक करने पर रिकॉर्डिंग ऑन होती है, फिर आपको बोलना है, तब जाके वो रिकॉर्ड होगा. ठीक है, और 20 सेकेंड्स कई बार इतने फटाफट चले जाते हैं कि बच्चे सिर्फ ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ क्लिक करो, क्या रीड करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज now here
I have given the sentences. Practice test 1 beginner level. I am giving here 1 minute of time to note down these sentences so that afterwards you can record. Okay. 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप ये सारे सेंटेंसेस अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर मैं उसका आंसर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो में दिखाती हूँ. पहले सारे सेंटेंस लिख लीजिए, फिर उसको आप रिकॉर्ड कीजिए. देन कंपेयर विद द आंसर्स विच आई हैव गिवन इन द रिकॉर्डिंग. ठीक है, मैंने जो रिकॉर्ड करके दिया है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो शायद आपके लिए प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगा. बिगिनिंग लेवल इज़ वेरी इजी, बट इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल इज़ लिटिल डिफिकल्ट. ओके, ये इंटरमीडिएट लेवल है, ये भी आप लिख लीजिए. आई एम गिविंग यू 1 minute टू नोट डाउन दिस ऑल सेंटेंसेस. Now advanced level, this is little bit longer and complex type of sentences are there. Here you have to uh, speak in a proper rhythm and pattern. You have to consider the pronunciation with the punctuation mark. जहाँ पर फुल स्टॉप होगा वहाँ सेंटेंस ख़त्म होता है, जहाँ पर कॉमा होता है वहाँ पर आपको थोड़ा पोज लेना पड़ता है. एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रोनाउंसिएशन भी आता है. क्वेश्चन मार्क आपको टोन चेंज करके क्वेश्चन मार्क को भी बोलना पड़ता है कि सामने वाले को पता चले कि ये क्वेश्चन है. ठीक है. If you like these tips and all the information of this question type, then please like, share and subscribe. मैं ये सारा कुछ फ्री में कर रही हूँ, इसमें मुझे टाइम भी लगता है, बहुत रिसर्च भी करना पड़ता है. तो प्लीज़ उसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों के पास अभी क्लास ज्वाइन करने के पैसे नहीं है, उनके काम आ सके. ठीक है. नाउ लेट्स गो विद द आंसर्स. मैं प्रोनाउंसिएशन के ऑडियो आपको अभी इसके बाद सुनाती हूँ. कंपेयर योर प्रोनाउंसिएशन विद द प्रोनाउंसिएशन आई हैव गिवन. ओके. Practice test 1, beginner level. 1. There are 10 columns and 7 rows. 1. There are 10 columns and 7 rows. 2. Do you believe those rumors about the mayor? 2. Do you believe those rumors about the mayor? 3. He took the high road in his campaign. 3. He took the high road in his campaign. 4. What a useful herb. 4. What a useful herb. 5.
They showed their self-sufficiency by growing their own vegetables. 5. They showed their self-sufficiency by growing their own vegetables. Practice test 1, intermediate level. 1. When the going gets tough, the tough get going. 1. When the going gets tough, the tough get going. 2. Two of these pendulums are placed at right angles. 2. Two of these pendulums are placed at right angles. 3. The masculine side is characterized by logic, facts, systems, and self-interest. 3. The masculine side is characterized by logic, facts, systems, and self-interest. 4. As soon as their parents left, the children invited all their friends over. 4. As soon as their parents left, the children invited all their friends over. 5. Some imbalances may be long-standing, and it may take time to bring your system into equilibrium. 5. Some imbalances may be long-standing, and it may take time to bring your system into equilibrium. Practice test 1, advanced level. 1. It's easier to win people to your side by persuasion and politeness than by confrontation and threats. 1. It's easier to win people to your side by persuasion and politeness than by confrontation and threats. 2. Sometimes you may face disappointments in your pursuits or your wishes may not be fulfilled. 2. Sometimes you may face disappointments in your pursuits or your wishes may not be fulfilled. 3. We can start asking for more specific things such as what dosage of herbs to take or which foods would best nourish our bodies. 3. We can start asking for more specific things such as what dosage of herbs to take or which foods would best nourish our bodies. 4. Meanwhile, it was revealed that his campaign was gearing up to take the low road with its own attack adverts. 4. Meanwhile, it was revealed that his campaign was gearing up to take the low road with its own attack adverts. 5. In the worst-case scenario, they enable the other person's dilemma by not knowing when to stop playing the rescuer and allow the person to figure it out on their own. 5. In the worst-case scenario, they enable the other person's dilemma by not knowing when to stop playing the rescuer and allow the person to figure it out on their own. Hope you find this video very helpful. You can do the practice by repeating these sentences and listen them again and again. There are some words which are very new for you or maybe difficult to pronounce. So please share, like and subscribe my channel. Have a good day.